Good morning, students. Before starting today's topic, let's recall the things which we have learned in the last lecture. But in the last lecture, we have learned about that what makes India a federal country, and in that we have learned about the features those we are following in our country. Means in our country, more than one level of government are there now, and the second thing, their jurisdiction, their power also specified in our constitution. In that we have learned about three lists na, union list, state list and concurrent list, and one more residuary list we have learned. And the next thing, that the judiciary, if any disputes arise between central and state, then judiciary play a role as an umpire na. We have learned all these things in the last lecture. So today we will learn that how this federalism practiced in our country. Means कि फेडरल होना और सक्सेसफुल फेडरल होना, मीन्स सक्सेसफुल फेडरल कंट्री होना, देर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. फेडरल मीन्स तो कोई भी अपने आप को फेडरल बोल देगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी कर देगा, बट वो उस कंट्री में कितना फॉलो हो रहा है, कितना लोग प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं उसको, वी सी ऑल दीज थिंग्स एंड ऑन दीज बेसिस कि जो फेडरल है, ऐसे तो श्रीलंका भी अपने आप को फेडरल बोल सकता है, जहाँ पे सिन्हालाज और तमिल स्पीकर्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस था, बट कि उस कंट्री में कितना फॉलो हो रहा है, जो उसका पॉलिटिकल जो नेचर है, वी सी दैट पॉलिटिकल नेचर, and on the basis of that political nature we can say that in this country the federalism is successful, the federalism is practiced. So on the basis of this term, in India we have done three experiments to know that is India a federal country or no, not. Okay, so first experiment, that is linguistic state, means to form the state on the basis of language is known as linguistic state. Means at that time, means during colonial period also or after the independence also, the our national leaders, they feared because they faced the partition pain, they faced the British rule na, means so many problems they faced. So now they feared that if on the basis of language they formed the state, maybe problem arise. Okay, so in the starting they feared, they were not in the favor of to make the states on the basis of language, but slowly and gradually when people demanded for the state on the basis of language, then see beta in 1956 one state reorganization commission was formed, and after that this state formation on the basis of language it is started. And now we know that since 1947 up to now so many states formed ना, कि time to time change आता रहता है. Earlier there were only 14 states were there, but now at present time 28 states are there ना. So see, evolution of states over a period of time 1947 we know very well कि जो states में है वो evolution हुआ है ना, वो बनती रही हैं. रिसेंटली जो जम्मू कश्मीर को हटाया है, अर्लियर 29 ना, अब 28, एंड इफ यू टॉक अबाउट इन द स्टार्टिंग सो 14 स्टेट ओनली वर देयर. सो बेटा जो स्टेट्स में फॉर्मेशन है ये चेंज होती रहती है. अब स्टेट्स की जो बाउंड्रीज होती है वो लैंग्वेज के बेस पर, कल्चर के बेस पे फिक्स की गई हैं. तो स्टार्टिंग में स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पर, मीन्स जो मराठी स्पीकर्स थे वो अपने लिए डिफरेंट स्टेट की डिमांड करने लगे. ठीक है, जो मलयालम स्पीकर्स थे उन्होंने अपने लिए डिफरेंट स्टेट की डिमांड की. तो जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन बना था, तो इसके बाद जो मराठी स्पीकर्स थे उनके लिए महाराष्ट्र, जो मलयालम बोलते थे उनके लिए केरला, ठीक है, जो तेलुगु स्पीकर्स थे उनके लिए तमिलनाडु. सो इस तरह से जो थी कि स्टेट्स फॉर्म हुई किसके बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर. सी, creation of the states on the basis of language is linguistic state. Okay, so understood this. Now next, leaders feared it would lead to disintegration. नाउ कि जो लीडर्स थे हमारे जिन्होंने पार्टीशन को फेस किया था, पार्टीशन में जो जितनी भी जो पेन हुआ था, जो पीपल जो मारे गए थे दोनों तरफ से, ठीक है, वो सारा एक्सपीरियंस वो देख चुके थे. तो उनको अभी डर था कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाएंगे तो मे बी इन फ्यूचर दे कैन ऑल्सो सेपरेट लाइक पाकिस्तान, दे कैन ऑल्सो डिमांड फॉर देयर इंडिपेंडेंट कंट्री. सो उनको थोड़ा सा डर था कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट नहीं होनी चाहिए. बट जब लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया डिफरेंट स्टेट्स के लिए, ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, गवर्नमेंट को फोर्स होना पड़ा, उन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनानी स्टार्ट कर दी.
but see, but experience has shown that linguistic state forget unity and made administration easy. मीन्स जो हमारा एक्सपीरियंस अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंस कि जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है कि जो लैंग्वेज के बेसिस पर जो ये स्टेट फॉर्म की है उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वो बहुत इजी हो गया। मीन्स जो स्टेट्स हैं वो अपनी लैंग्वेज में अपना जो स्टेट वर्क वो इजीली कर लेती हैं, ठीक है, और इससे किसको भी इजी रहा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी। सो इन दिस वे वी कैन से दैट इन आवर कंट्री फेडरलिज्म इज followed because in our country the means different states now they feel that they have their own dignity, means उनकी इम्पोर्टेंस है, मीन्स जो गवर्नमेंट है उनकी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देती है, उनको अलग से उनके लिए स्टेट बनाई हुई है उनकी लैंग्वेज के बेसिस पर। तो जो लोग हैं वो यूनिटी बना के रखते हैं कि चलो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कर रही है कि हमारी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस दे रही है, हमारे लिए अलग से स्टेट मीन्स हमें अलग से आइडेंटिटी दी गई है। ओके, एंड इन दैट सी वी कैन से इन श्रीलंका की जो वहाँ पे जो तमिल स्पीकर्स थे वो इस तरह का फील नहीं करते थे। अगर हमारी कंट्री में भी ऐसा हो सका तो मे भी हो सकता था कि आने वाले टाइम में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जिनको लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चाहिए थी कि वो सिविल वॉर जैसे श्रीलंका में होता है ऐसा हमारी कंट्री में भी हो जाता। सो ऐसा नहीं हुआ, बट कि जो हमारी कंट्री में क्या है उनको लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाए गए, ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, इवन उनके कल्चर को रीजनल जो उनकी जो मीन्स रिचुअल्स थे पॉलिसीज थे उनके बेसिस पर भी उनको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया। और ये जो एक्सपीरियंस है हमारा ये ओवरऑल क्या है, गुड एक्सपीरियंस। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट इन आवर कंट्री फेडरलिज्म इज देयर बिकॉज only one language is not there, means on the basis of different languages we found different states, means here states also have their means personal identity। Okay, now next second experiment that was on the basis of language policy। Okay, so language policy, if we talk about the language, so beta in our country the 40% population speak the Hindi language and the remaining 60% they speak the different languages। Okay, so see we didn't have any national language, means कि हमारी जो इंडिया है उसकी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी बट नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें ये कहीं पर भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, बिकॉज कि जो हमारा जो उस टाइम के जो लीडर्स थे उनको पता था कि अगर हम एक लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देंगे तो मे बी जो हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं कि दूसरे जो हैं वो इन्फीरियर फील करे, ठीक है, वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे। तो उन्होंने किसी भी लैंग्वेज को एज ए नेशनल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। नाउ नेक्स्ट, हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, कि उस टाइम पे जो हिंदी थी बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक दिस लैंग्वेज ना, सो हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया था व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन। नाउ बिसाइड हिंदी 21 अदर लैंग्वेजेस वर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज, मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ हिंदी को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, हिंदी टोटल हमारी जो 22 लैंग्वेजेज हैं उनको शेड्यूल लैंग्वेज एज अ शेड्यूल लैंग्वेज स्पेसिफाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड हिंदी इज वन ऑफ देम। ओके, सो इन दिस वे द मीन्स जो लीडर्स थे उन्होंने सभी लैंग्वेजेस को, बिकॉज दे नो वेरी वेल अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, सो they add 22 language as a scheduled language। Okay, now next thing, states to have their own official languages। now कि जो जितनी भी डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी में होगा, ठीक है, कि उनकी अपनी स्टेट की जो लैंग्वेज होती है वो उसमें अपना ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, और एक जो उनके ऊपर जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो सेंट्रल की है उसमें भी वर्क कर सकते हैं, मीन्स उनको फ्रीडम होती है कि जिससे उनका वर्क जो ईजी हो जाए। ओके, नेक्स्ट, कोशियस यूज ऑफ स्प्रेडिंग हिंदी। अब जो मीन्स हमारी कंट्री में स्टार्टिंग से जो लोग हैं वो फेवर में रहे हैं कि जो हमारी कंट्री में ज़्यादा लोग जो हैं हिंदी स्पीकर है तो हिंदी को प्रमोट किया जाना चाहिए, बट इस हिंदी को प्रमोट तो किया गया है बट गवर्नमेंट को इसमें कोशियस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा केयरफुली रोल प्ले करना, कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा केयरफुली सोचना पड़ा कि हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हैं, मीन्स उसको प्रमोट कर रहे हैं,
तो ऐसे प्रमोट किया जाए कि दूसरी लैंग्वेजेस को भी इम्पोर्टेंस दी जाए. सो दे एडेड दिस अदर 21 लैंग्वेजेस ऑल्सो ना एज अ शेड्यूल लैंग्वेज, कि अगर वो एक ही लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे तो मे भी हो सकता है कि जो श्रीलंका में सिचुएशन हुई थी वैसा हो जाए. जो तमिल स्पीकर्स थे, जैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, सिविल वॉर फॉट हुआ था, तो जो हमारे जो लीडर्स थे दे नो वेरी वेल अबाउट दीज ऑल सिचुएशन. सो दे एडेड दिस मीन्स 21 अनदर लैंग्वेजेस ऑल्सो. नेक्स्ट, डिबेट फॉर हिंदी वर्सेज इंग्लिश. मीन्स हमारी कंट्री में हिंदी और इंग्लिश को लेकर डिबेट रहा. कैसे कि जो हमारा जो साउदर्न पार्ट है, जो मोस्ट ऑफ द साउदर्न पार्ट में जो इंग्लिश स्पीकर्स है, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी. अगर उनको इंटरेक्ट करना है उनके साथ, नॉर्दर्न्स के साथ, और नॉर्दर्न्स को उनके साथ करना है, तो मीन्स कि एक लैंग्वेज में नहीं हो सकता. वो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है. तो इसके लिए क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, 1965 में जो इंग्लिश लैंग्वेज थी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज उसको हटा दिया था कि हम इंग्लिश को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारी कॉलोनियल लैंग्वेज है. जो ब्रिटिशर्स थे वो बोलते थे, बट जो साउथ के लोग हैं उनकी इसमें क्या गलती है कि वो बोलते हैं, वो नहीं जानते दूसरी लैंग्वेज, तो मेन तो उनके लिए तो इंग्लिश होनी चाहिए ना. स्टार्टिंग में इन 8th क्लास वी रेड दैट कि उन्होंने एक बार धमकी भी दी थी कि अगर हमारे ऊपर हिंदी लैंग्वेज को इम्पोज किया गया तो हम सेपरेट कंट्री बना लेंगे, हम इंडिया से अलग हो जाएंगे. सो इन दिस वे कि 1965 में एक बार सोचा था कि एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ हिंदी को रखा था, इंग्लिश को रिमूव कर दिया था. बट जो लोगों ने फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, जो तमिल से मीन्स तमिलनाडु में तो मीन्स बहुत ज़्यादा वायलेंस भी हो गया था. सो फिर दोबारा से क्या हुआ, इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड किया गया. तो बाद में क्या हुआ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की दोनों अब हमारी कंट्री में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है. ओके, प्रमोशन ऑफ हिंदी स्टिल कंटिन्यूस. प्रमोशन डज नॉट मीन्स इम्पोजिशन ऑफ हिंदी. मीन्स हमारी कंट्री में जो हिंदी लैंग्वेज की प्रमोशन लोग अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दे आर हिंदी स्पीकर्स ना. बट यहाँ पे प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि इम्पोजिशन हो रहा है, कि मीन्स कि अपनी मर्जी से अडोप्ट जिसको करनी है हिंदी वो करे. ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती उन पे इम्पोज किया जा रहा, थोपा जा रहा है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट आवर कंट्री इज अ फेडरल कंट्री, बिकॉज in our country the language means peoples are free to adopt any language to. Okay, so second experiment on the basis of language policies. Now third, if we talk about third, that is central state relations. Okay, if we talk about central state relations means कि अगर सिर्फ सेंट्रल यूनिटरी मीन्स सारे डिसीजन लेती है, सारी पावर सेंटर के हाथ में होती है, तो वी कांट से दैट देयर इज फेडरलिज्म. See, but if we talk about our country, when we got independence, so since 1947 to 1980s और 1990s कि सिर्फ हमारी एक ही जो थी पॉलिटिकल पार्टी वो फॉर्म में रही है, मीन्स मेजोरिटी उसी को मिलती गई है, कांग्रेस. बिकॉज कि जो हमारा फ्रीडम से पहले कांग्रेस पार्टी जो थी उसका मेन रोल था. सो फ्रीडम के बाद में भी व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस तो लोगों का उस पर भरोसा था और बार बार वही पार्टी मेजोरिटी में आती चलेगी. अब इससे क्या होता था कि कोई भी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी तो हम फेडरलिज्म नहीं बोल सकते थे, मीन्स स्टेट लेवल पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी मेजोरिटी में कि कांग्रेस ही बन रही है बार 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 बार. बट 1990s में क्या हुआ कि एक एरा आया एंड दैट एरा कोलिजन गवर्नमेंट. अब क्या हुआ कि जो कांग्रेस है उसको मेजोरिटी मिलनी बंद हो गई. अब मेजोरिटी वी नो वेरी वेल इन 9th क्लास ऑल्सो वी रेड दैट कि मेजोरिटी के लिए मोर देन हाफ सीट्स चाहिए ना. सो मीन्स 273. सो अब क्या हुआ कि जब कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली तो उसको क्या करना पड़ा, दूसरी गवर्नमेंट्स के साथ मिलके कोलिजन गवर्नमेंट बनानी पड़ी. अब कोलिजन गवर्नमेंट से क्या हुआ कि जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती थी तो जो जिसके साथ मिलकर उसने कोलिजन गवर्नमेंट बनाई है तो उसकी भी सुननी पड़ती थी ना. कई बार जो रॉन्ग डिसीजन है तो जो साथ वाले जिसने जो सपोर्ट किया है वो पार्टी बोलती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे पहले जो था सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अपनी चलाती है, बाद में क्या हुआ कि जो कोलिजन गवर्नमेंट बनी है तो उस जो साथ वाली जो पार्टी है उसकी भी उसको माननी पड़ी. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन से कि स्लोली और ग्रेजुअली द स्टेट्स दे विल मीन्स दे बिकम इम्पोर्टेंट. ओके, सो सी पावर शेयरिंग arrangements work on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. means कि जो पावर शेयरिंग है
कि वो कैसे हो रही है और लीडर्स उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। वी नो वेरी वेल दैट इन स्टार्टिंग कि जो लीडर्स थे सिर्फ कांग्रेस के थे, वो किसी से पार्टी मीन शेयर नहीं करते थे, वो जो उनको अच्छा लगता था वो डिसीजन चलते थे। बट जब कॉलिजन एरा स्टार्ट हुई तो उनको जो दूसरी पार्टीज थी उनकी भी माननी पड़ी। अब यहाँ पर जो दूसरे लेवल की जो गवर्नमेंट्स थी उनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ी। नेक्स्ट, वन पार्टी डोमिनेंस, कि जो अगर वन पार्टी डोमिनेंस है जैसे कि पहले कांग्रेस का मान सकते हैं हम, कि उससे क्या होगा कि जो फेडरलिज्म है वो नेग्लेक्ट होगा। एट दैट टाइम मीन्स इन दिस सिचुएशन वी कैन नॉट से दैट फेडरलिज्म इज देयर इन आवर कंट्री। नेक्स्ट, द पार्टी रूल्ड एट सेंटर अंडरमाइन स्टेट पार्टी, मीन्स कि अगर जो पार्टी है जो सेंट्रल लेवल पे है कि वो मेजोरिटी में है, उसको ये पता है कि हमेशा मेरी ही मेजोरिटी रहनी है और कोई मेरे कंपटीशन में नहीं है, तो वो क्या करेंगे, जो दूसरी पार्टीज हैं उनको अंडरमाइन कर सकती हैं। ओके, रीजनल पार्टी कम इन पावर, कोलिजन गवर्नमेंट। सो आई डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि जो रीजनल पार्टी हैं कोलिजन गवर्नमेंट के आने से वो क्या हुई, पावर में आई। ओके, न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, चेक ऑन द पावर्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट इंक्रीज। न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग हाउ, सी कि जब कोलिजन गवर्नमेंट बनी तो पावर जो थी वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज में डिवाइड होने लगी। ओके, और फिर क्या हुआ कि इससे चेक एंड बैलेंसेस बना, मीन्स जो मेजोरिटी में जो पार्टी पहले रहती थी अब वो मेजोरिटी में नहीं है, उसके साथ उसने किसी और पार्टी का सपोर्ट लिया है, तो अब उसको अपने डिसीजन मेकिंग में उसका भी एग्रीमेंट चाहिए। अगर वो एग्री नहीं है तो वो नहीं बना सकती। सो इट मीन्स क्या है कि ये कि जो कल्चर है ये चेंज हुआ और चेक्स उनके ऊपर मीन्स चेक्स और बैलेंसेस डेवलप हुआ। नेक्स्ट, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स इंक्रीज, और जो स्टेट्स थे उनकी ऑटोनॉमी जो पहले नहीं थी अब वो इंक्रीज हुई। सो इन दिस वे वी कैन से दैट this also practiced in our country, means power sharing is there. So on the basis of these we can say that in our country the federalism is practiced. Okay, and recently if we talk about Haryana also, there is also coalition government na. So see, coalition government we had discussed in 9th class also कि जब एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो पार्टी दूसरी पार्टी को अपने सपोर्ट के लिए लेकर आती है ना, तो दोनों मिलकर जब उन दोनों की सीट मोर देन हाफ हो जाती हैं तो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और गवर्नमेंट में दोनों का रोल इम्पोर्टेंट होता है, मीन्स दोनों एक साथ इक्वल रोल प्ले करते हैं। सो इन दिस वे वी कैन से दिस टाइप ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट ना। सो बेटा फर्स्टली मीन्स इन आवर कंट्री वी टॉक अबाउट दैट 1980s to 1990s the only one majority party is there, Congress, but after 1990s this coalition means era came, and in that the state power also increased. So up to here this we have discussed that how we check this that federalism practiced in our country on three bases: linguistic state, language policies, and state and central relations. Okay, so it is your homework that you will read all these three topics from your book today. Okay, tomorrow we will start the next topic. Okay beta.